Hey Magambians, welcome back to Vedantu's J channel, all of you. And before I say anything, मैं कुछ भी और बोलूँ सबसे पहले तो I want to say I'm really sorry that I'm sure you guys must have been waiting for this session to happen live. और मैंने actually बहुत कोशिश भी की, yes, on Tuesday, right? तो मैंने Tuesday को 8 बजे ये session हमारा scheduled था और session हो नहीं पाया because of low upload speed at my end. So it's very heavily raining in Mumbai nowadays. और उस पूरे चक्कर में I think some internet issues have happened any which way. So I have taken a decision that ये session important है. I do not want this internet issue to become a hurdle between the session and the learning. That's why we are going to do this and you are going to solve the problems along with me. Even when the session is premiered, I'm sure that it is going to be helpful for you as it is top practice problems on modern physics. We have already talked about the theory part of it in the long 6-hour session of Aadhaar. This is VJ Elite Live जहाँ पे हम लोगों ने almost complete physics of 12th standard कर लिया है. अब सिर्फ एक chapter बचा हुआ है, that is the semiconductor and its devices. So we are going to do that. Do not worry. Okay, everyone. बट जितने चैप्टर्स हम लोग करते जा रहे हैं उनके साथ में हमें करने हैं तपस के डिस्कशन. दिस इज वन ऑफ देम. इसके बाद में गेयर अप हो जाओ बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैराथन्स आल्सो हैपनिंग फॉर ऑल दीस चैप्टर्स. ठीक है एवरीवन. सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करता हूँ. साथ के साथ सॉल्व करते जाना. तुमने आई एम होपिंग कि वो जो आधार सेशन हुआ था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डीपीपी अपलोडेड है वो खुद से लगाई हुई है. अगर नहीं लगाई है तो कोशिश करना कि पहले वो लगा लो, खुद से सॉल्व कर लो, तो ये सेशन शायद और ज्यादा मीनिंगफुल और हेल्पफुल लगेगा. For those people who are new on the channel, let me quickly start with my introduction. This is me, your Suri sir. I am a B.Tech from IIT Bombay, and on this channel, my students call me Mugambo, and they call themselves Mugambians because when you guys will crack the examination of JEE, Mugambo खुश होगा. Okay? तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना so that all these sessions which we are doing for you to prepare for JEE 2022, JEE 2023, and maybe if you are in 10th standard also, if you can stay connected so that it helps you if you are thinking and aspiring to prepare for JEE. Okay? Press the bell icon so that whenever these sessions happen, you can watch them as they are coming on the channel. Okay, everybody? Good. So before I even go any further, I want to share the latest results, which I'm sure you all must have been waiting for. JEE finally 2021 में complete हो गया है ना. JEE main complete हो गया, JEE advanced is still to happen, and we all were very eagerly, desperately waiting कि भाई result क्या रहे. और जितने भी Vedans हैं 12th और 11th standard के, they all were waiting for the result. So guys, yes, your own Vedantu has done it again. We have Vaibhav Bajaj who has got All India rank 35 in JEE main. So yes everybody, we have done it again. Top 100 results लेके आना definitely student के लिए तो बहुत ज़्यादा मायने रखता ही है, but उसके अलावा जो teachers हैं, institutes हैं, उन सब के लिए भी बहुत matter करता है. तो definitely it's a proud feeling being the master teacher of Vedantu and having our student getting an All India rank 100. Not just that guys, 99.9 percentile plus, that means the top creamy layer. 78 students from Vedantu have made it in that list. 99 percentile plus, right? So in that 869 students from Vedantu, these are all the wave students. Huh? These are not students, we have not even taken the count from YouTube students into account because that data is still not official or it's not considered official. So official students of Vedantu, which are students of wave platform. Okay, and all India 1000 under 1000 rank में total 68 students हैं. Total top 5000 ranks में 444 students are there. So this guy Vaibhav Bajaj, Rishit All India rank 113, Sunrit Roy 139 rank. These are the stars of this year. Do spread the word. Do tell your friends that तुम्हारी वेदांतु से भी amazing results आए हैं, as always आए हैं, और next year, next to next year, you are going to be in this list. Okay, everybody, quickly बता देता हूँ, if you guys want to be on this wave platform, if you want to be the organic part of the family, then these are currently the batches that I am teaching.
संकल्प जेई एफ बैच, उसके अलावा दृष्टि जेई सी बैच है। इसको ज्वाइन करने के लिए तुम्हें एक प्रो सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है, व्हिच इज कॉल्ड एज वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन प्लान। उसके बारे में टुवर्ड्स दी लेटर हाफ ऑफ द सेशन में और डिटेल में बात करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना बता सकता हूं कि वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन प्लान के जो ज्वाइनिंग लिंक्स हैं, मतलब जो यूआरएल्स हैं, दोस आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्लिक करो, ज्वाइन करो, और अगर ऑलरेडी हो वहां पे तो मेरे बैचेस में आ भी सकते हो। ठीक है ऑल ऑफ यू, ग्रेट, ऑसम। उसके अलावा कौन से बैच तुम्हारे लिए सूटेबल हैं, कब वो स्टार्ट हुए हैं? अगर लेटेस्ट बैच की बात करूं, डिपेंडिंग अपॉन यू आर इन 11th और 12th, या अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो क्या प्रिपेयर कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम टारगेट कर रहे हो, जेई टारगेट कर रहे हो, टर्म 1 जो हो चुका है अगर उसका क्रैश कोर्स करना चाहते हो, या फिर एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या केवीपीवाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। टर्म 1 में भी तुम्हारे स्कूल में हो गया हो, नहीं भी हुआ हो, बट बेसिकली उसका मेजॉरिटी पोर्शन हो चुका है, तो उसके करंटली जो बैचेस हैं वो तुम यहाँ देख सकते हो कि ग्रेड 11th और 12th के लिए सीबीएसई का बैच 6 सितंबर को शुरू हुआ था ऑलरेडी, लेकिन एक और बैच है जो 4 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है। सो इट इज towards the end of September we are already, so if you want you can join these batches, start from the fresh. Okay? उसके अलावा अगर तुम जेई एस्पिरेंट हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो बैच है ऑब्वियसली वो ऑलरेडी 11th और 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 सितंबर स्टार्ट हो चुका है। ड्रॉपर्स के लिए इंफॉर्मेशन है भाई, 13 सितंबर को ही लास्ट नया बैच स्टार्ट हुआ है। यू कैन बी इन दैट बैच एंड कंटिन्यू योर जेई प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। टर्म 1 का क्रैश कोर्स जो कि सिर्फ 11th और 12th के लिए वैलिड है, डेट्स आर हियर। अगर तुम एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 11th में तो नहीं दे सकते एग्जाम, 12th और ड्रॉपर्स के लिए डेट्स फॉर द बैच एंड केवीपीवाई का बैच 16 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। इट्स अ क्रैश कोर्स बैच। if you are interested in KVPY specifically, you want to focus on that, we have a crash course going on for that also. ठीक है, तो आई गेस तुम्हें मालूम है तुम्हें कौन सा बैच ज्वाइन करना है, इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन। बहुत डिटेल में अगर जानना है तो स्टे ट्यून्ड, आई विल स्पीक अबाउट दैट आल्सो, पर फिलहाल विल बी फोकसिंग अपॉन टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये क्या है? जो आधार सेशन हुआ था 5 hours 40 minutes के आसपास का सेशन था, वो मैराथन सेशन था, मेरा लॉन्गेस्ट सेशन ऑन यूट्यूब था वो। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें इसका असाइनमेंट या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोल सकते हो, वो मिल जाएगा। उसमें से सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को लगे होते हैं इन जनरल, वो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं। तो वंस अगेन, इफ यू हैव नॉट सॉल्व्ड इट, आई रेकमेंड यू सॉल्व इट एंड देन वॉच दिस। If you have tried it, then definitely it's going to be helpful for you. Okay, everybody. So what are we doing? We are doing the top practice problem from Tapas. चलो भाई, तो start करेंगे. Try to solve the questions along with me. I have picked up the most interesting questions that I found. Some of them are not that lengthy. Some of them are lengthy also. Some of them you might find very tricky as well. So just focus on the question and try to see how it is approached and done. First question in front of you, this is question number 6 from that assignment. Close to 55 questions are there, I guess. So a particle of mass capital M at rest, okay, so a particle is having a mass capital M, it is at rest, decays into two particles of mass M1 and M2. मतलब ये बहुत हद तक हमें फीलिंग देता है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। वहां पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में ब्रेक डाउन होता था, कुछ वैसा ही सिचुएशन है। एंड the particle which was initially given was at rest, so initial momentum of the particle was 0, center of mass ka momentum was 0, it breaks into two particles having non-zero velocities, very obvious, and the ratio of the de Broglie wavelength of these particles lambda 1 and lambda 2 is to be given. तो भाई सबसे पहले तो अगर मान लो ये पार्टिकल है कैपिटल M मास का है और ये अगर मान लो ब्रेक डाउन होने भी वाला है, तो वी कैन से दैट ये जो दो पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, मान लो इसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी v1 है टू द राइट हैंड साइड, वी नो दैट द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज 0, तो फाइनली भी 0 रहने के लिए जो दूसरा पार्टिकल या दूसरा पार्ट बनेगा इसका, which is going to be mass m2, that has to move to the left hand side with the velocity v2, keeping one thing in mind that if initial momentum is 0, then final momentum should also be equal to 0. That means m1 v1 plus m2 v2 vectorially should be equal to 0. Okay guys, I hope you guys understand this, right? Which means what I'm trying to say that p1 vector is equal to magnitude wise p2 vector बोल सकते हैं इसको। अगर यहाँ राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो m1 v1 is equal to minus of m2 v2, but basically their momentums are equal. Why am I doing this? Is because when we write the de Broglie wavelength, that is h
upon mv, or if I write it in short, I'll simply say that it is h upon p. They both have the same value of momentum, so we can say that because they have the same value of momentum, lambda 1 will be equal to lambda 2. Their de Broglie wavelengths will also be same, and question has, instead of asking this, it has asked for the ratio, and we can say that the ratio of the de Broglie wavelengths lambda 1 is to lambda 2 is going to be 1. Okay, very good, awesome everyone. That's great. Let me see if the system is working or not. It is working. Let's go. This question is done. Let's move on to the second one. This is a real good question. Question number 8 it is. Question को पढ़ते हैं. Question में लिखा है कि if the momentum of the electron is changed by delta p. Okay, so एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मोमेंटम डेल्टा p से अमाउंट से चेंज कर देते हैं. Then the de Broglie wavelength associated with it is reduced by 0.5%. Then the initial momentum of the electron will be. और जो पूछा है वो in terms of delta p पूछा है. भाई हमें ये पता है कि जो de Broglie wavelength है lambda वो है h upon p. If the momentum is changed by delta p and wavelength is reduced by 0.5, तो अगर वेवलेंथ को कम होना है तो डेफिनेटली मोमेंटम बढ़ाया ही होगा या बढ़ ही गया होगा फॉर श्योर. ठीक है एवरीवन, दिस इज समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड. तो नया वेवलेंथ जो है वो लैम्डा माइनस 0.5%, दैट मींस 0.5 बाय 100 टाइम्स ऑफ लैम्डा रहा होगा, एंड h अपॉन नया मोमेंटम कैन बी सेड टू बी इक्वल टू p प्लस डेल्टा p. आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज न्यू वेवलेंथ. लैम्डा में से इतना परसेंट लैम्डा कम कर दोगे तो हम लिख सकते हैं कि मोमेंटम p प्लस डेल्टा p हो गया होगा. ठीक है, या डेल्टा p मोमेंटम बढ़ाने पर वेवलेंथ इतनी कम हो जाती है. सो वी कैन से दैट 99.5 by 100 lambda. What I'm going to do, I'm going to put lambda here as h upon p. मुझे lambda को एलिमिनेट इसलिए करना है क्योंकि मुझे आंसर मोमेंटम के बारे में करना है. Good, everyone? We get this? I hope so. So you see that h very visibly gets cancelled. मैं एक काम करता हूँ, इसको डबल करता हूँ. रीजन भी मैं इसको डबल इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे ऑप्शंस में 199 दिखाई देता है और इसका डबल इज गोइंग टू बी 199. ओके एवरीवन, तो मैं इसको डबल करता हूँ. तो दिस बिकम्स 199 by 200. डिनोमिनेटर में ही p है एंड 1 upon p प्लस डेल्टा p. मतलब मैंने क्या किया है बच्चों? What I have done, I have multiplied this and divided it by 2. That's what I have done. The left hand side. That's what I have done. Okay guys? Cool. चलो फिर simplify करते हैं further. So what do I see? I see that 200 by 199p minus p is equal to delta p. इसको रेसिप्रोकल में लेके गए तो ये बन जाता है p by 199 is equal to delta p and initial momentum is what the question asks. p वैल्यू हमसे पूछी है तो ये वैल्यू आ जाती है 199 times the amount of change in momentum. That means a good question comes to an end. Answer comes out to be option C here. Okay everyone? Good? Yes. So I guess you guys understood. Wavelength को समझना था कि अगर मोमेंटम को डेल्टा p से बढ़ाया और मोमेंटम कम हो, वेवलेंथ कम हुई है तो डेफिनेटली आपने मोमेंटम को बढ़ाया ही होगा. इसीलिए यहाँ प्लस है और वहां माइनस है. उसके बाद में इट इज सिंपली अ मैथमेटिकल गेम. ठीक है एवरीबॉडी? सो वी हैव द आंसर. आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन सी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is question number 11. I guess we have not skipped it. Yeah. Question number 11 is the next question that we have here. इसमें हमें बोला है कि if the wavelength of the first line of the Balmer series of hydrogen is 6561 angstrom, then the wavelength of the second line of the Balmer series is going to be how much or should be how much? भाई पहली बात तो ये Balmer series वो है जिसमें landing orbit है ना, लाइमन एंड बामर. तो लैंडिंग ऑर्बिट जो है वो n इक्वल टू 2 होता है. तो जब हम पहली सीरीज या पहली लाइन की बात करते हैं तो ट्रांजिशन हैज टू हैपन फ्रॉम 3 टू 2, और सेकंड लाइन की जब बात करते हैं तो ट्रांजिशन हैज टू हैपन फ्रॉम 4 टू 2. मतलब n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ओके, जो भी हमारा न्यूक्लियस है
तो ये n इक्वल टू 1 2 3 4 है। जब ट्रांजिशन 3 से 2 होता है तो बामर सीरीज के रेडिएशंस आते हैं, और जब 4 से 2 होता है तो भी बामर सीरीज के रेडिएशंस आते हैं, बट स्पेक्ट्रल लाइंस अलग होती हैं, राइट, उनकी वेवलेंथ अलग होती हैं बेसिकली। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ, अगर ऑलरेडी फर्स्ट लाइन के लिए बताया हमें, तो दैट मींस 1 अपॉन लैम्डा 1 व्हिच इज इक्वल टू, फॉर्मूला सबको मालूम है, राइट एवरीवन, आर एनर्जी वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाला रहता है, करेक्ट एवरीवन। सो दैट इज बेसिकली जनरल फॉर्मूला पहले यहां लिख देता हूं, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसमें हमेशा याद रखना है फॉर्मूला ऐसे आया है कि ये वैल्यू जो है n1 की वो छोटी होनी चाहिए कंपैरेटिव टू n2, सो दैट ये ब्रैकेट का वैल्यू पॉजिटिव आए, स्पेशली व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, ये आता ही वहां से है, ठीक है एवरीवन, गुड इनफ। तो r1 अपॉन ट्रांजिशन इज गोइंग फ्रॉम 3 टू 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये अपनी पहली स्पेक्ट्रल लाइन हो गई, इसकी फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज हो जाती है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे तो दिस इज 9 माइनस 4 है ना, 9 माइनस 4 दैट्स बेसिकली 5, सो 5 r बाय दिस इज 4 into 9 लिख देते हैं, चलो 36 पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके अलावा 1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 1 का वैल्यू में दिया हुआ है बाय द वे 6561, और ये हो जाएगा r 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, बिकॉज ट्रांजिशन इज बिटवीन 4 to 2, ठीक है एवरीवन। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16, तो 1 अपॉन 4 को मैं लिख सकता हूं 4 by 16, so 4 minus 1 that is 3r by 16, that's what it is, and I need lambda 2, so lambda 2 by lambda 1 is going to be lambda 1 denominator, that means 5r by 36 into 16 by 3r, डिवाइड करके लिख भी सकते हो वैसा, तो r से r को कैंसिल कर दोगे और जो जो चीजें कैंसिल होती हुई दिखाई देगी वो भी करेंगे। I can see that this is going to go by 4 times, this is going to go by 9 times. What I see here, I see the numerator is 20, 3 9s are 27. So lambda 2 is 20 by 27, definitely less than 1, and multiplied by lambda 1 which is 6561, but definitely ये रेशो हाफ से तो बड़ा है, तो 6561 का जो हाफ होता है उससे बड़ी वेवलेंथ आएगी और 6561 से छोटी आएगी, ठीक है। तो हाफ से तो डेफिनेटली बड़ी है, तो ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ी वैल्यू हो गई, तो उसको रिजेक्ट कर दोगे, ये ऑलमोस्ट हाफ हो गई, उसको रिजेक्ट कर दोगे, ये बहुत छोटी हो गई, तो आंसर सॉल्व भी कर सकते हो, बट लॉजिकली विदाउट डूइंग कैलकुलेशंस बता रहा हूँ, द आंसर इज गोइंग टू बी 4860, ठीक है एवरीबॉडी। होप यू गाइस अंडरस्टूड, हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन वंस, ठीक है एवरीवन, वी गेट दिस, सिंपल इट इज, राइट। सो दिस इज डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अगर तुमने मेरा वो थियरी सेशन जो आधार सेशन था अगर वो देखा है, जैसे कहना भाई some things require my attention, हाँ, so everyone, yes, if you have seen that session, जो आधार सेशन किया था वहां मैंने बताया था कि नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसे तुम एक्चुअली सैटेलाइट मोशन से कंपेयर कर सकते हो, स्पेशली एज फार एज द एनर्जी इज कंसर्न। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने वहां पे फिगर आउट भी की थी और डायरेक्टली भी लिखी थी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम लिखते हैं एज kZe स्क्वायर बाय r विद अ माइनस साइन, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, तो काइनेटिक एनर्जी आती है कि Ze square by 2r, such that the ratio of kinetic to potential energy, यहां से जब सिंप्लीफाई भी करोगे तो माइनस हाफ आता है, लेकिन ये इन जनरल में हमें मालूम रहना चाहिए, ये मैंने वहां एक्सप्लेन किया था विद एन एनालॉजी विद द सैटेलाइट मोशन, जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये दोनों ही वैल्यूज पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है न्यूमेरिकली। तो टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आती है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, इसीलिए उसका साइन अलग लिख दिया है।
अगर यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, गुड। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन सी, -half. The other one, question number 15 for all of us. ये क्वेश्चन बोलता है the ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. We know that, right? That means what? अगर जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्बिट में उसे इनफाइनाइट तक लेकर जाना है तो जो एनर्जी वाला फॉर्मूला होता है वो हम लिखते हैं -13.6 z² by n². करेक्ट? आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट दिस फॉर्मूला. तो फॉर हाइड्रोजन अगर आयनाइजेशन करना मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल देना है, तो z तो वैसे भी 1 है और n का वैल्यू जो है वो 1 से इंफिनिटी तक जाएगा, तो चेंज इन एनर्जी 13.6 पॉजिटिव आ जाएगी. दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव टू गिव टू द हाइड्रोजन एटम. अब क्वेश्चन ऐसा बोला कि अगर मान लो ट्रांजिशन थर्ड से फोर्थ के बीच में होना है, थर्ड से फोर्थ ऑर्बिट के बीच में होना, दैट मींस n की वैल्यू. अच्छा, फॉर हाइड्रोजन तो मैं इसको लिख देता हूं 13.6 by n². ओके, फॉर हाइड्रोजन. तो अब हमें पता लगाना है ट्रांजिशन एनर्जी. तो E3 जो है वो आएगा -13.6 by 3² दैट इज 9 एंड E4 आएगा -13.6 by 4² दैट इज 16. ठीक है. So obviously as you are going away, you are going closer to 0, which is bigger than negative values. So E4 is greater than E3. So E4 minus E3 is going to be -13.6 by 16 minus plus 13.6 by 9. 13.6 को कॉमन भी ले लोगे अगर तो 1/9 minus 1/16 हो जाएगा. और देखो यहाँ भी मैं कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, फिर भी हम आंसर निकाल पाएंगे. बहुत हद तक हम करेक्ट आंसर गेस कर पाएंगे. तो ये होगा 16 minus 9 that is 7 divided by 16 into 9. अब देखो जरा, न्यूमरेटर में 13.6 अगर 16 से कैंसिल हो पाता एग्जैक्ट तो रेशो 1 आता. अभी इन दोनों का रेशो लेस देन 1 है. 7 और 9 अगर इक्वल नंबर होते तो कैंसिल होके 1 रेशो देते, लेकिन अभी 7 लेस देन 9 है तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट भी लेस देन 1 वाला है. तो डेफिनेटली आंसर बी और ए नहीं हो सकता क्योंकि वो वैल्यूज मोर देन 1 है. ठीक है. तो अब थोड़ा सा एस्टिमेट लगाओगे तो जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 0.6 my bad 0.6 के आसपास आ जाती है वैल्यू. ठीक है. सो द वैल्यू इज गोइंग टू बी 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एटलीस्ट मैं दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहा हूं जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर्स विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन. तो अगर मेरा लक अच्छा होता, अगर एक और वैल्यू मोर देन 1 दी होती या वेरी क्लोज टू 1 दी होती, तो फिर मैं उस ऑप्शन को भी रिजेक्ट करता. विदाउट सॉल्विंग मैं बोलता हूं आंसर ऑप्शन डी है. ठीक है. Hope you guys are liking the approach of not getting into the lengthy calculations and trying to eliminate the options. और ये जो चैप्टर है स्पेसिफिकली भी और आगे क्वेश्चंस भी हम आते हुए देखेंगे, स्पेशली अगर तुम लकी हो और ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे मास डिफेक्ट इन्वॉल्व है, न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, तो बहुत हद तक चांसेस होने चाहिए कि तुम ऑप्शंस को विदाउट सॉल्विंग द वैल्यूज इन अ रिलीजियस मैनर भी एलिमिनेट कर पाओ. ठीक है. चलो, तो अगला क्वेश्चन है एक्सरे से. इसमें बोला है कि द प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बीटा एक्सरे द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शुड बी. तो यार देखो, के के लिए ना लैंडिंग ऑर्बिट जो है वो n इक्वल टू 1 होना चाहिए. तो के अल्फा जो होता है उसमें ट्रांजिशन जो है दैट हैपेंस फ्रॉम 2 to 1, मतलब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 तक आना होता है. अगर के बीटा है तो भी आना तो n इक्वल टू 1 पे ही है, आना तो n इक्वल टू 1 पे ही है, लेकिन बीटा के लिए n इक्वल टू 3 से इलेक्ट्रॉन को जंप मारना पड़ता है. और के गामा अगर हो जाएगा तो n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 का जंप होगा. अगर यही चीज l अल्फा l बीटा l गामा होती तो ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 तक होगा. लिख देता हूं यहां पे, अगर l अल्फा है तो ट्रांजिशन विल हैपन फ्रॉम 3 to 2. l बीटा अगर है तो 4 से 2, और अगर L गामा है तो 5 से 2 हो जाएगा. लाइक दैट द ट्रांजिशंस हैव टू हैपन. तो हमारा जो आंसर है एवरीबॉडी वो है n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 के बीच में, दैट इज ऑप्शन सी. कुछ ऐसा सिचुएशन है. ठीक है. के बीटा के लिए ट्रांजिशन इज हैपनिंग फ्रॉम 3 to 1. राइट एवरीवन. ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था. आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू दैट सेशन, रिपीटिंग वंस अगेन दैट पॉइंट. ठीक है गाइस. चलो अब आ जाते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 एंड लुक्स लाइक दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट.
one of my favorites, और ये है short topic, you all know that, right? So you know that, right? Yeah. So question number 25 says that the work function of a substance is 4 electron volt. तो हमें work function का value दे दिया है. The longest wavelength of the light that can cause photoelectron emission is going to be approximately how much? तुम्हें मालूम है कि longest wavelength is basically the threshold wavelength which is going to make this possible. तो मैं बोल सकता हूँ कि जो work function है वो या तो h nu naught लिखा जाए अगर मुझे minimum frequency कैलकुलेट करने बोला जाए तो, लेकिन अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो hc by lambda लिखूंगा. अब लुकिंग एट द ऑप्शंस मुझे नैनोमीटर में सॉल्व करना है और ये वैल्यू मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है. तो सबसे पहली बात तो इसको लिखोगे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और hc by e सॉल्व करोगे, hc by e, ठीक है. सो दैट दिस आल्सो बिकम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फॉर दैट द वैल्यू इज 1240 by lambda. याद रखना अगर हमें वेवलेंथ चाहिए नैनोमीटर में तो hc by e का वैल्यू है 1240. अगर हमें वेवलेंथ चाहिए एंगस्ट्रॉम्स में तो hc by e का वैल्यू हो जाता है 12400. ठीक है, एंड दिस इज ऑल लॉजिकल. अगर तुम h और c के SI यूनिट्स के वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर जूल्स में आएगा, ये वाला जो फैक्टर है. लेकिन तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है. तो या तो ऐसा समझ लो कि e से हम डिवाइड कर रहे हैं तो अब ये सिर्फ जूल्स वाला फैक्टर रह गया, ठीक है. तो 1240 है तो लैम्डा नॉट का वैल्यू आ जाता है 1240 by 4 और वैल्यू आती है 310 नैनोमीटर या फिर 3100 एंगस्ट्रॉम भी बोला जा सकता है, ठीक है. ग्रेट. ओके गाइस, I need to move this bench. This is making it difficult for me to move around. Okay, I know you can't see that. चलो भाई, अगला सवाल. This is a question from your nucleus and binding energy situations. ठीक है everyone. So read the question before I solve it. Question में बोला है कि the binding energy per nucleon. पर न्यूक्लियन का मतलब है कि एक न्यूक्लियस में से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन नॉट इलेक्ट्रॉन एक एक न्यूट्रॉन और एक एक प्रोटॉन को अगर हम बाहर निकालने लगे तो हमें ऑन एन एवरेज सारे न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकाल देने के लिए और सबको एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाने के लिए कितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है. तो वो जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होता है. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूट्रॉन 1h2 एंड 2he4 हीलियम के लिए हमें 1.4 और 6.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है. हमें पूछा है कि द एनर्जी रिलीज व्हेन द टू ड्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, देन वो हमें पता लगाने के लिए बोला गया है. मतलब ये कि अगर मान लो 1h2 और 1h2 का फ्यूजन हो जाए तो 2he4 तो मिलेगा और साथ में बहुत ही ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी. वो एनर्जी जो है वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर होनी चाहिए. तो एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट है, कितने हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं, 4 न्यूक्लियॉन्स हैं और कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बताइए, 6.7 बताइए हमें, ठीक है. सिमिलरली रिएक्टेंट्स भी न्यूक्लियॉन कितने हैं, 2 और 2 4 और पर न्यूक्लियॉन एनर्जी है 1.4, ठीक है. मोगेम्बियंस. So 6 7 4 7s are 28, 2 that goes there 24, that is 26.8 minus 16 1, that means 5.6. So 26.8 minus 5.6, so 20 से थोड़ा बड़ा वैल्यू है 21.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के होने पर, ठीक है. ऑल ऑफ यू गेट इट. चलो अब आई थिंक सबसे बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है पूरे शीट का, ठीक है. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है. इसमें बोला है कि हाइड्रोजन एटम एमिट्स अ फोटोन which is corresponding to an electron transitioning from n equal to 5 to n equal to 1. मतलब हाइड्रोजन एटम जब एक फोटोन को एमिट करेगा तो ऑब्वियसली उसके फोटोन के एमिशन के साथ में कुछ मोमेंटम के साथ फोटोन निकलेगा. तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हमें बताया है, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन
फ्रॉम n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 1 पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये हाइड्रोजन एटम जो है वो उतना ही फोटोन का एनर्जी इमिट करता है. ओके, आई गेस आई एम रीडिंग इट राइट. हाइड्रोजन एटम इमिट्स अ फोटोन corresponding to an ओके, आई भूल जाओ अभी जो बोला मैंने पिछले 1 मिनट में. बेसिकली जब एक हाइड्रोजन एटम में n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 के बीच में जब एनर्जी ट्रांजिशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ हायर टू लोअर एनर्जी लेवल. इन दिस प्रोसेस ऑब्वियसली द सिस्टम बिकम स्टेबल, द एटम का सिस्टम बिकम स्टेबल. और स्टेबल होने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी को लूज करना पड़ता है. वो जो एनर्जी बाहर निकलती है वो इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन मिलती है. तो फोटोन के बाहर जाने पर, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम बचता है, उस हाइड्रोजन एटम में कितना रिकॉइल स्पीड आता है ये हमें पता लगाने के लिए बोला गया है. ठीक है बच्चों, अज्यूमिंग कि यार इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है और हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, हम ये मान लेंगे कि मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्लोज टू मास ऑफ प्रोटॉन ही है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg. ठीक है गाइस, तो अब देखो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा रिकॉइल, ऑब्वियसली जब फोटोन बाहर आएगा तो कुछ मोमेंटम लेके आएगा, तो हाइड्रोजन एटम पीछे रिकॉइल होगा. तो जितना मोमेंटम हाइड्रोजन एटम को मिलेगा उतना ही मोमेंटम तुम्हारे फोटोन के पास में भी होगा. और फोटोन का मोमेंटम जो है वो E/c के बराबर होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो एनर्जी हम लिख रहे होते हैं, दिस एनर्जी इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो हाउ टू राइट डाउन. ठीक है, तो अभी इतनी देर से जो क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे, दैट वहां से अगर लिखता हूं 13.6 1 बाय हाइड्रोजन की बात हो रही है तो z स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. और क्योंकि c से डिवाइड किया हुआ है तो वो लिखेंगे. और ये एनर्जी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही होती है, ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का जो मोमेंटम है वो है m इंटू इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 13.6 बाय 3 इंटू, या फिर एक साथ लिखूंगा जब मास भी यहाँ पे लिख दूंगा, तो फिलहाल के लिए उसको c के फॉर्म में छोड़ दिया है मैंने. एंड दिस इज 1 अपॉन n1. आ रहे हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट पे और फिफ्थ से जंप लिया है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मैं इसको जूल्स में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि मुझे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करनी है. तो देखो अब मास का वैल्यू पुट कर रहे हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. वेलोसिटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं 13.6 बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8. ट्रांजिशन को अगर चेक करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 25 माइनस 1, सो 24 बाय 25 का ऑर्डर है. और ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. और अब मामला जूल्स में आ गया है, अब जूल्स में हो गया क्योंकि तुमने E का वैल्यू पुट कर दिया है. तो अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इन SI यूनिट सिस्टम, राइट एवरीवन. तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये. यहां से 1.6 कैंसिल किया मैंने, गुड. और 3 से जब इसको कैंसिल करता हूं तो 3 4s are 12 एंड यहाँ पे 16, तो 4.5 के ऑर्डर की वैल्यू आ गई. तो अब देखो, अब जो सिर्फ बचता है 10 टू द पावर 8 goes up becomes 10 to the power minus 27. तो this along with this cancels this. I hope you guys are getting this. 10 to the power 8 ऊपर जाएगा, 10 to the power minus 19 के साथ जब 10 to the power minus 8 लिखूंगा तो 10 to the power minus 27 बनेगा. minus 27 got cancelled. Overall, what am I left with is V equal to 4.5 into 24 by 25. देखो जरा, ये ऑर्डर डेफिनेटली लिटिल लेस देन 1 है, तो 4.5 से थोड़ी छोटी वैल्यू, और वो थोड़ी छोटी वैल्यू और कुछ नहीं 4 मीटर पर सेकंड है. अगेन आई हैव टोल्ड यू कि मैं कोशिश करूंगा और कोशिश करता रहूंगा हमेशा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मैं कैलकुलेशंस को अवॉइड कर पाऊं, मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलती रहे. एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड वंस अगेन. आई ट्राइड टू डू एज मिनिमम कैलकुलेशंस एज पॉसिबल. ठीक है, ट्रिकी पार्ट था कि एटम का जो मोमेंटम है वही फोटोन का मोमेंटम होगा, क्योंकि इनिशियली पूरा हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी है, तो अगर फोटोन इधर गया तो हाइड्रोजन एटम को थोड़ा सा रिकॉइल होना पड़ेगा विद द सेम मोमेंटम. ठीक है, गुड इनफ, ऑसम. तो ये भी हो गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था. आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा ये सवाल. उसमें मैं स्टार मार्क भी कर देता हूं सो दैट व्हेन यू गाइस आर सॉल्विंग इट बाय योरसेल्फ यू शुड बी एबल टू मार्क इट इन द 3-star लिस्ट ऑफ योर्स. एवरीवन, हमारी 3-star लिस्ट बनती है हमेशा. नाउ दिस वन, दिस इज आल्सो अ रियल गुड क्वेश्चन. पहले से ही स्टार मार्क कर रहा हूं, अच्छा सवाल है ये.
ओके सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर एंड इंटेंसिटी फॉल्स ऑन अ सरफेस ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल और 1% ऑफ द इंसिडेंट फोटोन व्हिच आर प्रोड्यूस्ड दे प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, then the number of photoelectrons emitted from an area of 1 centimeter square of the surface is nearly going to be how much? तो देखो यार, सबसे पहले तो अगर हम इंटेंसिटी की डेफिनेशन से जाएं तो वो होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, करेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें एक बार में कितने फोटॉन्स ये ई अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, तो मान लेते हैं कि चलो कैपिटल एन नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलके वो टोटल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे, दैट्स व्हाई कैपिटल एन नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो ये टोटल एनर्जी कैपिटल एन नंबर ऑफ फोटॉन से आ गई। अब मैं क्या करूंगा, n बाय टी जो है ये वैल्यू हमसे इवेंचुअली कैलकुलेट कराई गई है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी तो फोटोन का मामला है, n बाय टी को मैं काम करता हूं एवरीवन, मैं उसे लिख देता हूं स्मॉल n, और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्योंकि हमें बात की गई है वेवलेंथ के टर्म्स में, उसे लिख देता हूं hc बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय a, ठीक है ना, समझ गए। एनर्जी को लिखा hc बाय लैम्डा, a वहां पे ही है, स्मॉल n लिख दिया कैपिटल N बाय t को, बस। अब तुम्हें बहुत इजी लगना चाहिए सवाल, क्योंकि हम लिख रहे हैं कि n का जो वैल्यू है एक्सप्रेशन वाइज वो बन जाएगा I a लैम्डा बाय hc, करेक्ट एवरीवन। और हमें जो चाहिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो है 1% ऑफ n, दैट मींस 1 बाय 100 ऑफ I a लैम्डा बाय hc, ठीक है। तो इंटेंसिटी का वैल्यू 1 वॉट पर मीटर, यूनिट्स वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो यूनिट में कन्वर्ट करेक्ट कर देता हूं, वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है यूनिट्स। एरिया हमें बोला है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मींस 10 to the power minus 4 meter square. Wavelength is 3 into 10 to the power minus 7 meters, and this is 10 to the power 100 जो 10 to the power 2 जिसे मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो 10 to the power minus 2 भी मैंने वहीं लिख दिया, इसको ऊपर ले गए। This is 6.6 into 10 to the power minus 34 and 3 into 10 to the power 8, ये भी कैंसिल कर दिया। So I have, मैं काम करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 10 रखना चाहता हूँ, 10 by 6.6 लिखने के लिए, ठीक है एवरीवन, स्पॉन्टेनियस कैलकुलेशन कर रहा हूँ रियली। तो ओके तो यहाँ पे 10 to the power minus 5 बन गया, जैसे मैंने 10 एक्स्ट्रा ले लिया, 10 to the power minus 5, 10 to the power 7 उसके साथ में ऐड हो, तो 10 to the power 5 minus 5 minus 2 minus 7 minus 14, 10 to the power minus 14 ऊपर आ गया, 10 to the power minus 8 भी ऊपर पहुंच गया, और 10 to the power plus 34 ऊपर आ गया, ऐसा, ठीक है एवरीवन। तो ये फैक्टर जो है दैट इज गोइंग टू बी क्लोज टू 1.5 के आसपास मुझे ये फैक्टर मिलने वाला है, ठीक है एवरीवन। सो यहाँ का पूरा मामला है जो हमें चेक कर लेना है। दिस बिकम्स 10 to the power 22, 10 to the power 12 का फैक्टर है, हाँ 10 to the power 12 का फैक्टर में आ भी गए हम लोग। तो दिस इज 1.51 into 10 to the power 12 नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग दिस, है ना। एक बार कैलकुलेशंस तुम्हारे एंड पे भी चेक कर लेना बच्चों, ठीक है। ये 22 था, 34 था, हाँ 10 to the power 12 बनता है, और नियरेस्ट वैल्यू जो है मैं चाहता था ऑर्डर ऑफ यूनिटी में आए, तो ऑर्डर ऑफ यूनिटी में तो नियरेस्ट 1.5 ही दिखाई देता है, ठीक है राइट एवरीवन। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग द वे क्वेश्चंस आर बीइंग डन। आई नो इस चैप्टर में बहुत कैलकुलेशंस से डरते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद करके दिखाऊं और स्पॉन्टेनियस कैलकुलेशंस ही कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यस एवरीबॉडी, स्पॉन्टेनियस है, मैंने खुद ने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया उसे, ठीक है। आई हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चंस बट आई हैव नॉट एक्चुअली गॉन टू द ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ इट, ठीक है। ओके नाउ दिस वन, इसमें बोला है कि एक सैंपल है, okay, we have a sample which contains 16 grams of radioactive material and the half life of it is given to us as 2 days, and after 32 days कितना अमाउंट बचेगा उस पे कमेंट करना है, मतलब रेडियो एक्टिविटी पे आ गए तो हम लोग। we know that n by n naught का वैल्यू में दिया हुआ है should be equal to 1 by 2 t by t half, तो n का वैल्यू हो जाता है 1 by 2 t कितना 32 डेज, हाफ लाइफ कितनी 2 डेज, और n नॉट कितना 16 इन द ग्राम्स वैल्यू,
ठीक, तो ये बन गया 1/2 टू द पावर 16 और हो गया 2 टू द पावर 4 दैट टू इन ग्राम्स। तो नीचे आएगा तो 2 टू द पावर -4 लिख दूंगा, 1/2 टू द पावर -4, दैट मींस दिस इज 1/2 टू द पावर 12 ग्राम्स। राइट एवरीवन, सिंप्लीफाई भी करके देख सकते हो। क्लियरली ये वैल्यू लेस देन हाफ अ ग्राम, लेस देन 1/4 ऑफ अ ग्राम है, बट दिस इज एक्चुअली लेस देन 1 मिलीग्राम आल्सो। ठीक है, 10 टू द पावर -3 ग्राम से भी छोटी वैल्यू हमें मिलने वाली है बिकॉज ऑफ द पावर। सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी even less than 10 to the power -3 gram. Answer comes out to be option A. Okay, great. Yes, next one. Now this is from photoelectric equation once again. हमें क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है of multiple metals, cesium, potassium, sodium and lithium. उन सब के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, आई थिंक, या स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो हमें वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, दीज आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग देयर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर हमें इन्हें करेक्ट रैंकिंग ऑफ देयर वर्क फंक्शन के फॉर्म में अरेंज करना हो तो कैसे करेंगे? ये बहुत इजी है। EV0 इज इक्वल टू द एनर्जी, और अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना है तो एनर्जी को भी लिख देता हूं। एनर्जी लिखी जाती है h न्यू माइनस h न्यू नॉट, या वर्क फंक्शन लिखा जा सकता है। तो देखने वाली बात यह है बच्चों कि अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया V0 का, तो h न्यू बाई E माइनस वर्क फंक्शन बाई E के लिए भी कर सकते हैं, या इस इक्वेशन पे अगर नजर डालो तो दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड विद y इक्वल टू mx माइनस c। और कहने की बात और समझने की बात बहुत सिंपल सी ये है कि जो c का वैल्यू है न्यूमेरिकली वही वर्क फंक्शन के बराबर है। मतलब पहली बात तो नेगेटिव इंटरसेप्ट, और ये सारी लाइंस के इंटरसेप्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू सी दिस। ठीक है बच्चों, तो क्लियरली तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये है वर्क फंक्शन ऑफ द फर्स्ट वन, दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ द फर्स्ट वन, work function of the second one, work function of third one, work function of the fourth one, and numerically phi1 का value is less than phi2, less than phi3, less than phi4। मतलब phi1 is less than phi2 is less than phi3 is less than phi4। कहने का मतलब ये है कि पहले इतनी एनर्जी दोगे तब जाके तुम इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के बारे में सोच पाओगे। तो करेक्ट ऑर्डर लुक्स लाइक 4 is greater than 3 to 1। बहुत सिंपल सा ऑर्डर है, ऑप्शन सी हमें क्लियरली दिखाई देता है होना चाहिए वर्क फंक्शन के मैग्नीट्यूड का। Correct? Okay, everyone. Now this one. This says that if the light of wavelength lambda 1 is allowed to fall on a metal, then kinetic energy of the photoelectrons emitted is E1. बढ़िया, मतलब अगर hc by lambda 1 एनर्जी है, which is basically E1, तो lambda 1 उसकी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है। अगर तुमने वेवलेंथ को lambda 2 कर दिया तो okay, sorry, E1 is kinetic energy, hc by lambda 1 is the energy, E1 is the kinetic energy। That means what? जो kinetic energy का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं उसमें हमें बोला है कि E1 is equal to hc by lambda 1 minus work function। This is what it is। And E2 kinetic energy चेंज होके E2 हो जाती है अगर वेवलेंथ को चेंज कर देते हो, ऑब्वियसली क्योंकि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी चेंज हो गई। दैट्स व्हाई यहाँ कुछ चेंज होगा तो यहाँ चेंज होना ही पड़ेगा बिकॉज वर्क फंक्शन कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन हमसे पता लगाने बोल रहे हैं कि वर्क फंक्शन पता लगाओ इन टर्म्स ऑफ E1 lambda 1 E2 lambda 2। तो यार ऑब्वियसली मैं दोनों इक्वेशंस को कैंसिल आउट नहीं कर सकता क्योंकि लैम्डा ही चला जाएगा, फाई चला जाएगा। मैं hc को जरूर इक्वेट करना चाहूंगा, तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं hc पूरी इक्वेशन को lambda 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो दिस बिकम्स E1 lambda 1, दिस बिकम्स फाई और lambda 1 into फाई, और लेफ्ट साइड पे जब फाई उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव होके बन जाएगा lambda 1 टाइम्स फाई। आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग। पहले फाई को यहाँ लेके आ गए तो E1 प्लस फाई बना, E1 और फाई को lambda 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा सोचो तो hc बचता है। सिमिलरली hc यहाँ क्या बचेगा, E2 lambda 2 प्लस lambda 2 फाई। अब दोनों को इक्वेट करूंगा अगर तो E1 lambda 1 प्लस I will write it as lambda 1 into phi
is equal to E2 lambda 2 plus lambda 2 into phi. I guess you guys are following this. आप किसी को भी कहीं पे भी ले जाओ, देखो दोनों ही पॉसिबल ऑप्शन है, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ ले जा रहा हूँ, बहुत ही रैंडम है, आंसर आ जाएगा फिर भी, डोंट वरी। ठीक है, एक माइनस साइन का ही थोड़ा सा प्लस माइनस चेंज करना पड़ेगा हमें, बट डोंट वरी, आ जाएगा। तो ये देखो हमें मिलता है E1 लैम्डा 1 माइनस E2 लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू फाइव। मतलब मेरे लिए वर्क फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो है E1 लैम्डा 1 माइनस E2 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अगर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आंसर कैन ऑल्सो बी रिटन एज E2 लैम्डा 2 माइनस E1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है भाई। ऑब्वियसली ए और डी तो हो ही नहीं सकते, वो तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ये तो डायमेंशनली ही करेक्ट नहीं। ऊपर वाला लग रहा है डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, हाँ ऊपर वाला हमें, ऊपर वाला भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है बच्चों। हाँ ऊपर वाला ऑप्शन भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, क्योंकि वहां पे लैम्डा और एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा डायमेंशनली, तो ई स्क्वायर बाय लैम्डा का डायमेंशन एनर्जी का नहीं होता, और डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके डायमेंशन ही हमने गलत किए हुए, लैम्डा गेटिंग सबट्रैक्टेड विद एनर्जी। ओके, सो नाउ यू सी E1 लैम्डा 1 वाला ऑप्शन देखो, E1 लैम्डा 1 माइनस E2 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस प्रोसेस। ओके, गुड इनफ। चलो, आई गेस दिस इज आवर सेकंड लास्ट प्रॉब्लम, सो स्टे ट्यून। बहुत ही इजी क्वेश्चन होना चाहिए तुम्हारे लिए ये। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी। अभी लिखी थी इक्वेशन, वापस से लिख देते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वो होती है h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। मतलब ये है y इक्वल टू mx माइनस c टाइप ऑफ इक्वेशन। मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये कि पहली बात तो h पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव वाली लाइन हो सकती है, ये आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। दूसरी चीज, क्योंकि इंटरसेप्ट है तो ओरिजिन से पास नहीं होने वाली, ये नहीं हो सकता। तीसरी चीज है कि इंटरसेप्ट नेगेटिव है, जबकि यहाँ पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो ये नहीं हो सकती। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, बहुत सिंपली। अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में देखा था इस इक्वेशन को, तो आंसर आ जाता है ऑप्शन 2। एंड नाउ आई गेस द लास्ट क्वेश्चन। ओके, 55th। यस, सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी प्लॉट। तो वो फ्रीक्वेंसी है, ओके, दैट टू इन 10 टू द पावर 14 लिखा हुआ है, हमें बताया हुआ है ग्राफ में, और क्वेश्चन हमें बोला है कि व्हाट विल बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुम ग्राफ से देख के बता सकते हो, that this is going to be the threshold frequency, and that is nu naught, that is 5 into 10 to the power 14 hertz। अब क्वेश्चन हमें पता लगाने बोल रहा है कि लैम्डा नॉट कितना होगा, which is c by nu naught, we all know this, बचपन वाली इक्वेशन है। स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 divided by 5 into 10 to the power 14, so that looks like 0.6 into 10 to the power minus 6 और 6 into 10 to the power 7 meters, मतलब 6 नैनोमीटर्स भी लिख सकते हो और 6000 एंगस्ट्रॉम भी लिखा जा सकता है। ओके, सॉरी 600 नैनोमीटर्स, माय बैड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके एवरीबॉडी, ऑसम। तो भाई यस, मोगैम्बो डेफिनेटली खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छे लगे क्वेश्चंस पर्सनली, और स्पेशली वो क्वेश्चंस जहाँ पे हम अगर रिलीजियस अप्रोच से जाते तो हमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती थी। हमें वो कैलकुलेशंस कैसे अवॉइड करनी है, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट। आई होप तुम्हें वो चीज़ अच्छी भी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। खुद से ट्राई करते समय ऐसा एक्सपेरिमेंट जरूर करना। और नाउ for people who want to know about the wave platform, if you want to become the organic student of Vedantu, so that वो जो results तुमने अभी देखे थे, जो latest amazing results of Vedantu, if you want yourself also to be included in that result eventually when you appear and crack the examination of JEE, so this is basically where you become the organic student of Vedantu. And everyone, this is how the wave platform where we teach looks like. Okay, तो जैसे तुम यहाँ पे मुझे देख पा रहे हो, this is where my students are able to see me. Unlike the way I'm standing here, we get the comfort of sitting and explaining it
so that we can actually explain the concepts and stay for longer with you guys. This is where you are able to interact with me. आप मुझसे बात भी कर पाते हो, मुझसे अपने डाउट्स भी पूछ पाते हो, पर मेरे अलावा क्लास में और भी टीचर्स हैं which are called as class teachers. As you can see यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर टीचर, उसके अलावा कुछ होते हैं क्लास टीचर्स जो जिनका सोल एम है, सोल पर्पस है टू हेल्प यू विद योर डाउट्स, और तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग हैपेंस ड्यूरिंग द क्लास इटसेल्फ. ओके, जितनी भी चीजें हम चैट पे बता रहे हैं, सॉरी चैट पे नहीं, ड्यूरिंग सेशंस बता रहे हैं, चैट पे जो बता रहे हैं दैट इज ऑब्वियसली देयर फॉर यू गाइस टू ऑलवेज अंडरस्टैंड. बट जो चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो चीजें मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई डोंट हैव टू अपलोड द पीडीएफ एवरी टाइम, इट गेट्स नेचुरली अपलोडेड. तो तुम सेशंस के रिप्ले भी देख सकते हो, और अगर सिर्फ नोट्स गो थ्रू करने हैं तो वो हमेशा कर सकते हो, एंड एवरीथिंग हैपेंस लाइव. ओके, ऑब्वियसली समटाइम्स लाइक इन द चैट बॉक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ डाउट पूछते हैं जो कभी कभी कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होता है, या स्टूडेंट खुद अपने डाउट्स को टाइप करके उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते. तो वो चीज हम YouTube पे जो नहीं कर पाते हैं वो यहाँ हम कर पाते हैं बाय अनम्यूटिंग यू, अनकैमिंग यू. हम तुम्हें वीडियो से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं. दिस इज वेयर यू कैन आस्क अस योर डाउट एंड बिकम्स इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. ओके, जो भी तुम्हें डाउट है वो मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ बहुत आसानी से. और जो चीज अगेन YouTube पे हम नहीं कर पा रहे होते हैं is basically the participation and you can say the active participation in the quizzes. तुम definitely questions अभी मेरे साथ solve कर रहे थे, लेकिन मुझे as a class क्या हो रहा है, क्वेश्चन कितना अच्छे से सॉल्व हुआ, कितने बच्चों से सॉल्व हुआ, वो डेटा हमें समझ में नहीं आता. यहाँ पे जब तुम पार्टिसिपेट करते हो तो तुम एक्चुअली आंसर मार्क करते हो एज अ ऑनलाइन एग्जाम, एंड दिस इज हाउ फाइनली यू आर एबल टू सी द एंटायर परफॉर्मेंस ऑफ योर एंटायर क्लास. तो तुम कहाँ हो वो तो तुम्हें मालूम पड़ता ही है, मुझे एज अ टीचर मालूम पड़ता है कि हाउ माय क्लास हैज डन. डू दे रिक्वायर मी टू एक्चुअली एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट मोर इन डेप्थ. इस क्वेश्चन में कुछ ट्रिकी था जो नहीं समझ में आया तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो ये एक इंडेक्स हो जाता है अपने आप में टू जज वेदर द कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट. ठीक है, उसके अलावा जब क्लास एंड होती है तो यू गेट द एंटायर रैंक लिस्ट ऑफ दैट क्लास. डेफिनेटली एन अमेजिंग फीचर एंड अमेजिंग फीलिंग. क्लास के बाद में क्या भाई, ऑब्वियसली तुम बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करते हो, क्लास के बाहर भी सॉल्व करते हो, तत्व के डिस्कशंस होते हैं, तत्व तुम सॉल्व करते हो. उसके अलावा जो भी कंटेंट तुम सॉल्व कर रहे होते हो, तुम्हें बहुत सारे डाउट्स आते हैं. उन डाउट्स के लिए क्या मुझे अगली क्लास का वेट करने की जरूरत है जहां पे मैं अपने टीचर से डाउट पूछूं? यू डोंट हैव टू. वी हैव दिस अमेजिंग डाउट ऐप जहां पे अब तक 2 मिलियन 20 लाख 25 लाख से ज्यादा डाउट्स आंसर किए जा चुके हैं सिंस द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन, एंड एवरी डे यू कैन जस्ट क्लिक अ फोटोग्राफ पोस्टेड बिटवीन 8 o'clock in the morning till 11 o'clock in the night. Your doubts will get answered in an average turnaround time of 20 minutes. How amazing is that? नहीं? उसके अलावा बच्चों तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा जो एग्जामिनेशन है जेई का अब वो ऑनलाइन ही होता है. तो अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो it's only wise to prepare in an online mode when you are appearing for any of the mock tests. I've said this a number of times, I'm repeating this. अगर दो students हैं जिनका potential एकदम same है, potential in the sense they are equal in terms of their intelligence, in terms of their speed, in terms of their caliber, everything. But अगर एक student number 1 जो है वो online mock test देता है, student number 2 offline papers देता है, इन दोनों में organically जो student number 1 है he is actually having an edge, because जब वो actually जेईई का एग्जाम देने जाएगा तो उसका जो concentration है वो at par with the examination होगा. ये वाला जो स्टूडेंट है इसे थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, और ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा गैम्बल है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए. एज अ टीचर आई एम गिविंग यू दिस एडवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज. ओके, और सिर्फ लास्ट के 1 महीने में टेस्ट सीरीज लगा लेना may not be a good decision. Throughout the year, if you are organically practicing it, will be definitely much more helpful to you. This is how your entire results are given. यहाँ सिर्फ तुम्हारी एक्यूरेसी और तुम्हारा स्कोर नहीं होता. इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में, हर एक क्वेश्चन में, हर टॉपिक सब टॉपिक वाइज हाउ वेल यू हैव स्कोर्ड, हैव यू सॉल्व्ड इट करेक्टली, हैव यू सॉल्व्ड इट इनकरेक्टली, किस चैप्टर में तुम अच्छा जा रहे हो, किस चैप्टर में तुम एक्चुअली वीक हो, ये पूरा एनालिसिस तुम्हें इन डेप्थ मिलता है. That means what? You don't actually need somebody to tell you कि कहाँ तुम वीक हो, कहाँ तुम एक्चुअली स्ट्रांग हो. बहुत बार तुम्हें लगता है कि तुम उस पर्टिकुलर चैप्टर में स्ट्रांग हो, बट यू रियलाइज कि यार उस चैप्टर में भी कोई सब टॉपिक है जहां पे तुम वीक हो, तुम्हें पता ही नहीं था. इस लेवल पे तुम्हें अपने आप के बारे में एक एनालिसिस मिलता है जिससे इंप्रूवमेंट करना
एक स्टेप इजी बन जाता है, एंड दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज 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 सपोर्ट। ओके गाइस, इसके बारे में अब क्या बोलूं, आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू गाइस आर अवेयर अबाउट दिस ऑलरेडी, राइट? So you must have seen a lot of advertisement about this, and why we are advertising about this is because this is something which is unique and nobody is going to give you this promise. What is the promise? अगर आप वेदांतु ज्वाइन करते हो, से आप मेरे बैचेस में आते हो, अभी बताऊंगा अभी मैं कौन से बैचेस पढ़ाता हूँ, उन बैचेस में ऑब्वियसली आप एक एम, एक लक्ष्य लेके आते हो। आपका लक्ष्य है ऑब्वियसली टू अचीव योर ड्रीम, अचीव योर गोल। लेकिन पहली चीज तो ये, we are giving you the promise that that is going to be an improvement, there is going to be an improvement in your performance, we promise you that। अगर जो cynical लोग हैं who say कि सर अगर नहीं हुआ तो क्या, अगर नहीं हुआ तो we are the one who are making this promise very officially। if you don't see that improvement that you were expecting, we will give your fees back without even asking any question। that's the kind of promise that we are making, which is unique, nobody else is taking that promise, nobody is making that promise। That's why we are making this promise, because we are sure हमारे सिस्टम में हमारे जो टीचर्स हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और उनका जो सर्कल है, उनमें अगर आप हो, if you are organically a part of it, you are definitely going to have that improvement, right everybody? The testimony in itself, you can see this, the current result, the present result, year by year improving, repeating the success story every year। ऑल इंडिया रैंक 35, मतलब गॉन आर द डेज जब बच्चे डाउट करते थे कि यार ऑनलाइन पढ़ के कोई जेई का एग्जाम क्रैक कर सकता है कि नहीं। क्रैक करना तो अब बिकम अ हैबिट, क्रैक करके अच्छी रैंक लेके आना हैज बिकम अ ट्रेंड ऑनलाइन विद वेदांतु। 35 ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक 113, 139। yes guys, the ranks which are going to fetch you your dream colleges with the dream branch that you have been actually hoping for, right, becomes the reality for these students। not just that, वेदांतु के 78 students हैं जो 99.9 percentile, the top creamy layer of 99 percentile plus 869 students there, 68 in top 1000 and 444 in top 5000। that means उनका तो dream college already secure हो भी चुका है। ठीक है बच्चों, not just that, और भी रिजल्ट्स हैं जो मैंने पहले शेयर किए हुए हैं जेई मेन 2 और जेई मेन 3 के, बट नाउ बिकॉज वी हैव द जेई मेन 4 फाइनल रिजल्ट्स आउट, लेट्स वेट फॉर जेई एडवांस टू हैपन। वी विल डेफिनेटली टेल यू कि जेई एडवांस में क्या हुआ, कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी आईआईटी चले गए, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, अगर तुम वेदांतु का ऑर्गेनिक पार्ट बनना चाहते हो तो एक तरीका है तुम केवीपीवाई के कोर्सेज लगा सकते हो। अगर तुम केवीपीवाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो केवीपीवाई का एक क्रैश कोर्स है जो 16 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। उसमें 15 टोटल टेस्ट हैं, 15 टेस्ट पीसीएमबी कवर हो रहा है ऑब्वियसली फॉर केवीपीवाई पर्पस, 80 लाइव क्लासेस एंड 20 असाइनमेंट्स। ये अगर तुम्हें लगाना है तो द वर्थ इज ओनली जस्ट 4000 रुपीज एज ऑफ नाउ, वर्थ एक्चुअली 6000, लेकिन यू कैन गेट इट फॉर 4000 इफ यू यूज दिस कोड। तुम्हें खुद अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, ये जो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है, अभी थोड़ी देर में दिखाता भी हूँ, ठीक है। उस लिंक से तुम किसी भी लिंक को अगर ज्वाइन करने जा रहे हो तो यू डोंट हैव टू एक्चुअली पुट योर कोड, दिस कोड यू डोंट हैव टू पुट बिकॉज इट विल नेचुरली अप्लाई इट, एंड जो भी वहां पे फीस रिडक्शन है दैट यू डायरेक्टली गेट। ओके, तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है, लिंक पे क्लिक करो, गो देयर एंड जस्ट ज्वाइन द बैच। ठीक है, उसके अलावा भाई मोगैम्बो के कौन कौन से बैचेस हैं, सो दीज आर माय बैचेस मोगैम्बियंस, है ना। इन बैचेस में 12th स्टैंडर्ड का बैच है संकल्प जेईएफ, 11th का बैच है दृष्टि जेईसी बैच। ठीक है, दीज आर द करंट बैचेस दैट आई एम टीचिंग। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने बताए थे वो है, थोड़ी देर में दिखाता भी हूँ। और ये है वो सब्सक्रिप्शन प्लान जिनकी मैं बात कर रहा था। तो प्रो लाइट जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जिसका मंथली और एनुअल फीस जो है, प्रो क्लासिक जो है, इट इज बेसिकली प्रो लाइट प्लस द डाउट सॉल्विंग ऐप, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग ऐप। प्रो प्लस जो है वो प्रो लाइट प्लस a personal mentor। yes, when I say personal mentor is that person जो तुम्हें academically और non academically round the clock help करता है। ठीक है, that means a personal teacher to you। yes, तो ये 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, जो स्टूडेंट ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए भी सेम प्रो सब्सक्रिप्शन प्लान्स है बच्चों, लेकिन फीस में थोड़ा सा डिफरेंस है दैट यू हैव टू अकॉर्डिंगली सी, एंड दिस इज बेसिकली द लिंक। ठीक है एवरीबॉडी, गॉट इट। मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि तुम कौन से बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस बात पे ध्यान देना,
6th ऑफ सितंबर से ऑलरेडी 11th और 12th के बैच, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स ड्रॉप ले रहे हैं 13th ऑफ सितंबर से तुम्हारा लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है. डोंट मिस दिस ट्रेन, गेट इनसाइड इट, प्रिपेयर फॉर JEE 2022 and do not even waste a single day, single hour. Get in the routine. That's what I say. Okay, everyone? I'm sure सबने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं तुम्हें जितने भी DPPs हैं उनके PDFs, जो तुम सेशन PDFs चाहते हो हर बार वो अपने आप वहां मिल जाते हैं. तुम्हें हर बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने की जरूरत नहीं है, और डेली का टाइम टेबल भी वहां मिल जाया करता है. ठीक है, तो those who want to see the link for yes, so this is basically our session. जैसे अगर हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, दिस वीडियो डिड नॉट गो लाइव. हमने पूरा जो प्रॉब्लम फेस किया, तो जैसे कोई और मेरा वीडियो है मैं वो दिखा देता हूं तुम्हें. तो इसी वीडियो का जो आधार सेशन था, अगर तुम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाते हो बच्चों, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाएंगी. जो करंट वीडियो तुम देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी. यू विल फाइंड द असाइनमेंट जो हमने अभी सॉल्व किए हैं DPPs के क्वेश्चंस, वो ये असाइनमेंट है. उसके अलावा यू विल फाइंड कि किस टाइम स्टैम्प पे हम लोग क्या कर रहे थे वहां. KVPY के बच्चे जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, और वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन प्लान वाले स्टूडेंट्स, यू कैन ऑलवेज चेंज द कोर्स दैट यू आर लुकिंग फॉर बाय क्लिकिंग ओवर हियर. ठीक है, ऑल ऑफ यू. तो मान लो तुम 12th में हो और तुम JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जस्ट हैव टू क्लिक देयर, इट विल गिव यू द एंटायर डिटेल्स हियर. और जैसा मैंने बोला था, तुम्हें कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं. यू गेट दैट 10% एडिशनल डिस्काउंट बाय दिस कूपन कोड SM Pro. वो नेचुरली वहां लगा हुआ है. यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट लिंक, गो हियर, क्लिक ऑन बाय दिस कोर्स, लॉग इन, और यहाँ पे अपना जो बजट है, तुम्हारे पेरेंट्स ने जो तुम्हारे एजुकेशन का बजट तुम्हारे डिसाइड किया हुआ है, सिर्फ उसे यहाँ पे तुम्हें स्पेंड करना है, और एक सही डायरेक्शन में, सही बैच के साथ, सही प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाना है, सो दैट व्हेन यू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन यू हैव द रिजल्ट व्हिच यू वांट टू अचीव. ठीक है एवरीवन, सो आई गेस एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस थिंग. अगर कुछ डाउट्स हैं बच्चों और मुझसे पूछना चाहते हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में तुम मुझसे पूछ सकते हो. वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया, जो ट्रिक्स हमने लगाए हैं आज सॉल्व करने के लिए, अगर वो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड डेफिनेटली इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हो, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर दीस वीडियोस कम ऑन द चैनल. ओके एवरीवन, so next time I will see you guys live, because the video will not be premiered. This is very rare occasion when the video has been premiered because of the internet connectivity issues that we faced on Tuesday 8 o'clock. So I'll see you guys very soon. Till then, take care. Bye bye. Love you all.